তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে রাজনৈতিক জীবন থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। কিন্তু তার 7 ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই আরো একটি চমক বা মোড় ঘুরে দেওয়ার মতো বক্তব্য উঠে এলো। সেটা হচ্ছে কংগ্রেস বা প্রদেশ কংগ্রেসের যিনি পর্যবেক্ষক রয়েছেন অজয় কুমার, সম্প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রাজ্য কংগ্রেসের, এবং তিনি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের সঙ্গে ওভার ফোনে কথা বলেন এবং সেই কথোপকথনের পর দীর্ঘক্ষণ তাদের মধ্যে কথা হয় বলে দাবি করা হচ্ছে। এবং অজয় কুমার এই কথা বলার পর, পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলার পর অজয় কুমার দাবি করছেন যে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পরে তিনি তার যে সিদ্ধান্ত ছিল সেই সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে এই কথা হয়েছে, যেটা তিনি দাবি করছেন অজয় কুমার, যে আগামী 28 তারিখের পর এই রাজ্যে অজয় কুমার আসবেন এবং আসার পর্যন্ত এই যে সময়টা, এই সময়ের মধ্যে অ্যাক্টিং সভাপতির দায়িত্বে যেভাবে পীযূষ কান্তি বিশ্বাস ছিলেন ঠিক একই রকম ভাবে সেই দায়িত্বে যেন তিনি পুনর্বহাল থাকেন। এবং স্থানীয় যে সমস্যাগুলো রয়েছে, স্থানীয় যে ইস্যুস গুলো নিয়ে কথা হয়েছে অজয় কুমার এবং পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের সঙ্গে, এই 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 জায়গাতে এই বিষয়গুলো নিয়ে তাদের মধ্যে এসে একেবারে মুখোমুখি কথা হবে। নিজস্ব কি অসুবিধা রয়েছে, সাংগঠনিক কি দুর্বলতা রয়েছে, সাংগঠনিক কি সমস্যা রয়েছে, অসুবিধাগুলো কোথায় রয়েছে, কিভাবে দলকে ভালোভাবে পরিচালনা করা যাবে, পরিচালনা করতে গিয়ে কোথায় কোথায় বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, বা কি এমন কারণ যেখানে তাকে একেবারে এই পথ থেকে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিতে হবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে তখন কথা হবে। কিন্তু 28-এর পর যখন রাজ্যে আসবেন তারপর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে কিংবা তাদের মধ্যে কথা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এবং আপাতত এই সামাজিক মাধ্যমে পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের পদত্যাগের ঘোষণার 7 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু নয়া মোড়। এবং সম্প্রতি তাপস দে, যিনি কার্যকরী সহসভাপতি প্রদেশ কংগ্রেসের, তিনিও তার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন এবং বলেছেন যে একেবারে আগের মতো করেই বহাল তবিয়তে থাকবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। তার যে পদত্যাগ পত্র সেটা ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে অজয় কুমারের সঙ্গে কথা বলার পর। যদিও এখনো পর্যন্ত পীযূষ কান্তি বিশ্বাসের এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা পাইনি, হয়তোবা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হব তার বক্তব্য বা তার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে, অজয় কুমার দাবি করছেন যে পীযূষ কান্তি বিশ্বাস আগামী দিনেও প্রদেশ কংগ্রেসের অ্যাক্টিং সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন। তার যে পদত্যাগ পত্র সেটা গ্রহণ করা হয়নি এবং এটাও সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন যে আগামী 28 তারিখের পর তিনি ত্রিপুরায় আসবেন, রাজ্য সফরে আসবেন, আসার পর তার সঙ্গে কথা হবে। এই পর্যন্ত তিনি যেন এই দায়িত্বটা সামলান সেটাও তাকে জানানো হয়েছে এবং তার পাশাপাশি স্থানীয় এবং সাংগঠনিক যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। এবং প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে যেটা একেবারে দিনভর আলোচনা ছিল যে একেবারে 2 কিংবা 3 নেতৃত্ব গোটা প্রদেশ কংগ্রেসকে পরিচালনা করছিলেন, নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তার মধ্যে একেবারেই ডিএক্টিভ হয়ে পড়েছিলেন বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন, একেবারে দেখা যাচ্ছিল না তাদের উপস্থিতি। এবং পীযূষ কান্তি বিশ্বাস যখন প্রদেশ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তখন যে ভোটের সংখ্যা ছিল, ভোটের হার ছিল, লোকসভায় সুবল ভৌমিক যখন প্রদেশ কংগ্রেসে যোগদান করেন তখন এক লাফে সেটা 1.5% থেকে 26% গিয়ে পৌঁছায়। আবার সুবল ভৌমিক সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং তিনি কংগ্রেসে সাংগঠনিক ভাবে সঠিকভাবে কাজ করতে পারছিলেন না, এই ধরনের প্রকাশ্যে তিনি অভিযোগ না করলেও এই ধরনের অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যিনি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে ধরে রেখেছিলেন সেই পীযূষ কান্তি বিশ্বাস যখন কংগ্রেস থেকে সরে আসার দাবি করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন যে একেবারে তার যে পেশা অর্থাৎ আইনজীবী হিসেবে একেবারে প্রতিষ্ঠিত বা প্রখ্যাত এই রাজ্যের পীযূষ কান্তি বিশ্বাস ঠিক সেই আইনি পেশাতেই জড়িয়ে যাবেন বা যুক্ত হয়ে যাবেন, মনোযোগী হবেন বলে তিনি দাবি করেছিলেন। এই মুহূর্তে সবচেয়ে যে বড় খবর, দুপুর নাগাদ প্রত্যেকে জেনে গিয়েছিলেন যে প্রদেশ কংগ্রেসের অ্যাক্টিং সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এবং তার 6 ঘন্টা পর দিল্লি থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের যিনি অবজারভার রয়েছেন অজয় কুমার, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়নি এবং তিনিই থাকছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অ্যাক্টিং সভাপতির দায়িত্বে। और वो उन्होंने कहा कि अभी अपने इस्तीफ़ा जो जब तक हम त्रिपुरा नहीं आएंगे तब तक वो अपने इस्तीफ़ा वापस ले लेंगे और उनको कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ है।
त्रिपुरा पहुंच करके जो इनकी बात सुन करके उस सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि उन्होंने जब तक हम त्रिपुरा नहीं पहुंचेंगे तब तक वो अपने अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। तो कब आप त्रिपुरा जा रहे हैं और क्या इशू है त्रिपुरा की जिस वजह से उनको नाराजगी थी और उन्होंने पार्टी छोड़ने अपने पद को त्यागने की बात कही? देखिए, बहुत ही पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रह चुके हैं। कुछ आंतरिक समस्या है संगठन से संबंधित और थोड़ा भावुक होके जो है उन्होंने ये निर्णय लिया था। आपने देखा होगा कि जो उन्होंने मैसेज भी दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में उन्होंने पूरी तरह से अपने जो संवेदना अभी अपने कमिटमेंट रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप से उनको किसी तरह की समस्या नहीं। वहाँ के जो लोकल कुछ आते हैं जो उनको जो है काफ़ी लोकल इशू से काफ़ी उनको जो तकलीफ हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहुँचूँगा, बैठेंगे। एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे लोग का हमेशा हम लोग को ये सुनिश्चित करना है कि वो पार्टी काम करके पार्टी को मजबूत बनाए। आपकी बात हुई उनसे? मेरी बात हुई। देखिए, सुष्मिता देव असम से कांग्रेस पार्टी एक जनाधार वाली नेता थी, उनसे क्यों नहीं बात हुई, उनको क्यों नहीं रोका गया? क्या नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी के साथ जो लीडर हैं वो आंतरिक कलह की वजह से पार्टी छोड़ने के लिए एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं? इसको रोकने की क्या योजना है? तो पहली बात कि मुझे लगता है कि कांग्रेस जितना डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश में कम से कम तो नहीं। और अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को देखेंगे वहाँ तो खड़ा होने या बैठने के लिए भी आपको अनुमति नहीं है। सुष्मिता जी को हर एक तरीके से जो पार्टी ने मान सम्मान दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि कोशिश की गई और वो उनका निर्णय और उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं होगा कि वो मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जहाँ तक त्रिपुरा का विषय जो न्यूज़ में चल रहा था और बात उनका एक प्रेस बाइट भी था, उससे संबंधित हमारा जो है आपसे वार्तालाप हो रही है। तो हमारी बात हुई है उनसे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। ठीक है, हमारी बात हुई थी विश्वास साहब से, कुछ बात से वो नाराज है, लोकल इशू। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने हमेशा उनको सपोर्ट किया। हमने कहा कि हम आएंगे तो पूरा उसके बाद जो है हम लोग जो समस्या जो लोकल इश्यूज हैं उनके जो तकलीफें हैं उनको दूर करेंगे। तो वो हमारी बात, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारी बात मान ली, वो विश्वास साहब ने हमारी बात मान ली और अब जो है जब तक हम नहीं आएंगे तब तक अपना प्रोसेस का काम करते रहेंगे और साथ में बैठ करके जो समस्या है वो उसका समाधान हम लोग करेंगे। आपको विश्वास है कि आप ये हमारी बात हुई है और वो उन्होंने कहा कि अभी अपने इस्तीफा जो जब तक हम त्रिपुरा नहीं आएंगे तब तक वो अपने इस्तीफा वापस ले लेते हैं और उनको कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ है। त्रिपुरा पहुंच करके जो इनकी बात सुन करके उस सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि उन्होंने जब तक हम त्रिपुरा नहीं पहुंचेंगे तब तक वो अपने अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। तो कब आप त्रिपुरा जा रहे हैं और क्या इशू है त्रिपुरा की जिस वजह से उनको नाराजगी थी और उन्होंने पार्टी छोड़ने अपने पद को त्यागने की बात कही? देखिए, बहुत ही पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रह चुके हैं। कुछ आंतरिक समस्या है संगठन से संबंधित और थोड़ा भावुक होके जो है उन्होंने ये निर्णय लिया था। आपने देखा होगा कि जो उन्होंने मैसेज भी दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में उन्होंने पूरी तरह से अपने जो संवेदना अभी अपने कमिटमेंट रद्द करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप से उनको किसी तरह की समस्या नहीं। वहाँ के जो लोकल कुछ आते हैं जो उनको जो है काफ़ी लोकल इशू से काफ़ी उनको जो तकलीफ हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहुँचूँगा, बैठेंगे। एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे लोग का हमेशा हम लोग को ये सुनिश्चित करना है कि वो पार्टी काम करके पार्टी को मजबूत बनाए। आपकी बात हुई उनसे? मेरी बात हुई। देखिए, सुष्मिता देव असम से कांग्रेस पार्टी
एक जनाधार वाले नेता भी, उनसे क्यों नहीं बात हुई, उनको क्यों नहीं रोका गया? क्या नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी के साथ जो लीडर हैं वो आंतरिक कलह की वजह से पार्टी छोड़ने के लिए एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं? इसको रोकने की क्या योजना है? तो पहली बात कि मुझे लगता है कि कांग्रेस जितना डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश में कम से कम तो नहीं, और अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को देखेंगे वहाँ तो खड़ा होने या बैठने के लिए भी आप अनुमति नहीं मांगेंगे। सुष्मिता जी को हर एक तरीके से जो पार्टी ने मान सम्मान दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि कोशिश की गई और वो उनका निर्णय है, और उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं होगा कि वो मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर है। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जहाँ तक त्रिपुरा का विषय जो न्यूज़ में चल रहा था और बात उनका एक प्रेस बाइट भी था, उससे संबंधित हमारा जो है आपसे वार्तालाप करेगा। तो हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया ठीक है, हमारी बात हुई थी विश्वास साहब से, कुछ बात से वो नाराज था, लोकल इशू। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने हमेशा उनको